हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हैलो अल्कीनो में अब तक हमने लैब प्रिपरेशन की है। What are haloalkenes? Are those organic compounds in which halide group is directly attached to carbon atom या alkyl group. So if we take the example, different examples of these haloalkenes, chloroethane, chloromethane, chloropropane, 1-chlorobutane, 1-chlorohexane, 1-chloroheptane, and so on. Alkyl halides are classified into three categories. Number first is primary alkyl halides. Primary alkyl halides are those organic compounds in which halide group is directly attached to 1-degree carbon atom. And example 1-chlorobutane, yeah, chloromethane, chloroethane. Secondary alkyl halides are those halide groups in which halide group is attached to secondary carbon atom. So example isopropyl chloride or 2-chloropropane. And another one is tertiary alkyl halides or 3-degree alkyl halides are those organic compounds in which halide group is attached to 3-degree carbon atom or tertiary carbon atom. Example 2-chloro-2-methyl propane या tertiary butyl chloride. फिर उसके बाद हमने classification of this alkyl halides on the basis of number of halide groups attached to organic compound. One is monohaloalkanes, dihaloalkanes, trihaloalkanes, polyhaloalkanes. Monohaloalkanes are those organic compounds in which only one halide group is attached to aliphatic group or organic compound. For example, chloromethane, chloropropane, chlorobutane belongs to monohaloalkane category. Dihaloalkanes are those organic compounds in which two hydrogen atoms of these aliphatic compounds are replaced by two halide groups. Example, for example, 1,1-dichloroethane या 1,2-dichloroethane या 1,3-dichlorobutane. So as far as these dihalides are divided into two types, one is gym dihalide, another one is vicinal dihalides. Gym dihalides are those organic compounds in which two halide groups are attached to same carbon atom. Example 1,1-dichloroethane. And what is vicinal dihalide? Yeah, weak dihalides are those organic compounds in which two halide groups are attached to two adjacent carbon atoms. Example 1,2-dichloroethane. And weak dihalides are more stable than gym dihalides. We know that because in gym dihalides, similar groups are attached on same carbon atom, with the result repulsions will occur. That's why vicinal dihalides are more stable than this. What are trihaloalkanes, which contain three halide groups? What are polyhaloalkanes, which contain, when number of hydrogen atoms are replaced by these halide groups, they are known as polyhaloalkanes. For example 1, 2, 3, 5, 6 हेक्साक्लोरोहेक्सेन. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा ये कि व्हाट लैब प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, हाउ वी कैन प्रिपेयर हैलोअल्केन्स. नंबर फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम अल्कोहल्स. फ्रॉम अल्कोहलों में हमने देखा कि फ्रॉम बेटा अगर हम अल्कोहलों को ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट अल्कोहल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्लोराइड, दिस हैलोअल्केन्स आर फॉर्म्ड. Another one is if alcohol is treated with this thionyl chloride SOCl2 and RX is formed with elimination of SO2 gas HCl. So this method is also known as Darzan's procedure. Another one is if alcohol is treated with this PCl5, formation of alkyl halide takes place with elimination of POCl3 HCl. Another one is if if alcohol is treated with this PCl3 three times, we know that three times RX is formed with elimination of phosphoric acid H3PO3. And another one is Hans-Decker reaction. In Hans-Decker reaction, we will take silver salt of fatty acids treated with bromine molecule in presence of CCl4. Formation of this alkyl halide takes place with elimination of carbon dioxide gas and AgBr. This is also known as decarboxylation reaction, or this is descent of series. So instead of, if we take iodine molecule, then
such type of reaction is known as Brundtland-Simononi reaction. Esters are formed in this type of reaction. Another one is Finkelstein's reaction or halogen exchange reaction. If we take the example of this RBR, when it is treated with sodium iodide, exchange of halogens takes place in acetone. तो वहां पे बनता है ये अल्काइल हालाइड. अनदर वन इज डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स. तो if we add if we if alkenes, methane usually undergo halogenation, then monohaloalkenes. If excess of chlorine is available, then dihalo, then tri, tetra, वो आपको पता है क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है. अनदर वन इज फ्रॉम अल्कीन से हमने बनाया. व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद HCl, तो वहां से सिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगे तो अल्काइल हालाइड बनते हैं. बट इफ वी हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स लाइक प्रोपीन या 2-pentene, then what will happen? HCl follows Markovnikov's rule. Then this negative part of the adenine goes the carbon, which has least number of hydrogen atom. Positive part of the adenine goes the carbon. So secondary alkyl halides are formed. They are more stable than, ये मैंने कहा है. But in absence, and this in presence of peroxide like benzoyl peroxide, hydrogen peroxide, then this anti-Markovnikov rule is followed, and alkyl halides are formed. So another one is Schwarz reaction. In Schwarz reaction, we form this fluorobenzene because fluoroalkanes. तो उसमें भी हमें पता है SbF3 लेते हैं, उसमें Hg2F2 लेते हैं, AgF लेते हैं. वहां से भी हमने बनाया. स्वैट रिएक्शन भी आ गई, ब्रेनडान-सिमोनी रिएक्शन भी आ गई, इसमें एस्टर बनता है. हंस-डेकर रिएक्शन भी आ गई, फिनक्लिस्टन रिएक्शन भी आ गई, डार्जन्स प्रोसीजर भी आ गया बेटा. तो ये हमने इसमें मेथड्स किए जिससे हमने क्या बनाए, हैलो अल्केन्स बनाए. ठीक है बेटा कि नहीं है? देखिए अब इसके बाद बेटा आ रही है केमिकल प्रॉपर्टीज. अब आ रही है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkanes. Chemical properties of haloalkanes और chemical reactions. ठीक. देखिए अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्कीन्स. हैलोअल्कीन हमें पता है बेटा RX है. तो X इज हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है बेटा कि नहीं है? X is more electronegative. That's why it occurs slight negative charge, and this R occurs slight positive charge. When we heat it, it forms R positive and X negative. So heterolytic fission takes place in it. क्योंकि in heterolytic fission we know that ions are formed. ठीक है ना बेटा? अब देखो अगर हमारे पास अब है अल्काइल हालाइड्स, इनकी हमें बेटा केमिकल रिएक्शंस करनी है. केमिकल रिएक्शन का मतलब हो गया बेटा अगर मतलब किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टिंग स्पीशीज के साथ ये मिलेगा तो वहां पे क्या बनेगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? अब इसमें ये तो आपको पता है X is more electronegative than this alkyl group. Then the element which is more electronegative occurs del negative charge, and the element where from electrons depart occurs del positive charge. अगर इसको थोड़ा बहुत हीट अप करेंगे तो ये R पॉजिटिव. तो हीटेरोलाइसिस में यही होता है कि वहां पे आयन्स बनते हैं. ठीक है ना बेटा? देखो बेटा अब इसमें जो ये केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है या केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिलहाल हमें हैलोअल्कीन की ये केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं. फिलहाल अलहाइदा हम करेंगे हैलो एडिनो की भी. अब इसमें बेटा हम क्या ले रहे हैं? अब इसमें इसकी इतनी रिएक्शंस है. एक है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है एक.
नंबर सेकंड है बेटा मेटिलेशन रिएक्शंस, मेटिलेशन रिएक्शंस, metallation reaction or reaction of haloalkanes with metals. Number C is elimination reaction, elimination reaction. इसमें एक और है, इनको हम इनको फिर ये क्या कहते हैं इसको, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन यानी मिसलिनियस रिएक्शंस में ये आती है हैलोजिनेशन रिएक्शंस। और बेटा है इसमें ई रिडक्शन भी, रिडक्शन रिएक्शंस। हालांकि मेन इसमें बेटा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, मेटिलेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, इनको मिसलिनियस रिएक्शंस में रखेंगे। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये आपके पास आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, मेटिलेशन यानी रिएक्शन ऑफ दिस हैलोअल्केन्स विद मेटल्स, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर हैलोजिनेशन, फिर रिडक्शन रिएक्शन। इसको नोट कीजिएगा। देखिए बेटा, अब हमारे पास बेटा आ रही है पहले वाली न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफाइल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा यहाँ पे ये है कार्बन, इसके साथ बेटा कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है बेटा कि नहीं है? जब ये यहां से ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, पॉजिटिव, ये क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है ना? मगर ये क्या एक्ट कर रहा है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल ही है, क्योंकि ये क्या निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा, अभी आपने देखा कैटायन और एनायन बन गया, ये निकला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इस तरह निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके और नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर यहाँ पे बेटा लाऊं में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं लाऊंगा बेटा, ठीक है ना, तो जहां पे बेटा वीक इलेक्ट्रोफाइल, अगर कोई खिलाड़ी खेल नहीं रहा है, 2-4 मैच उसने, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, तो इसका मतलब वो थोड़ा फिट नहीं है, जब उसकी जगह पे हम रिप्लेस करते हैं दूसरे को, जब तक वो तैयार हो जाए, ठीक है कि नहीं है, अपनी कमियां दूर कर सके। इसी तरह यहाँ पर भी बेटा ये है कि जब स्ट्रांग खिलाड़ी आ रहा है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, वो किसको बेटा रिप्लेस करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल्स और गुड लिविंग ग्रुप से खुद ब खुद ये देखते हैं कि जब ये आ गया तो खुद ब खुद बाहर निकलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि तो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने एक्स रखा है, ये यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बेटा हमने लाया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या बेटा है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पे क्या है बेटा, और इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है, ये लविंग है, क्या है, न्यूक्लियस लविंग। इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियस। अब बेटा अब ये इसमें अगर ये है, ये निकल गया, ये क्या देगा, सी। यहाँ पे बेटा क्या है, ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा, इसको इसको प्रेफरेंस है, ये कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा बेटा। और ये जब निकलेगा, ये किस तरह निकलेगा, एक्स नेगेटिव। ये क्या है बेटा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। और ये बेटा क्या है, ये जो नीचे वाला है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या बेटा है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये भी बेटा, अब कहीं पे नेगेटिव चार्ज देखोगे तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। मगर यहाँ पे बेटा अमोनिया भी है, मगर इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, मगर ये क्या है, इसके पास भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये क्या एक्ट करेगा, प्रेफर करेगा ये न्यूक्लियस के पास जाना, तो ये भी क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। अगर इस तरह वाटर होगा बेटा, अगर इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो नेगेटिव ही नहीं है इस पे, अगर खाली इलेक्ट्रॉन पेयर भी होगा, ये क्या एक्ट करेगी, लिविस बेस। लिविस बेस हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं?
अब देखो बेटा यहाँ पे ये तो समझ आ गया कि नहीं। तो व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब देखो बेटा, तो इसका मतलब जब ये आएगा तो ये क्या बनेगा बेटा, ये यहाँ पे C, और जब ये NU आएगा इसके पास, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 2 6। तो इसमें कितने कम है बेटा? 2 है। तो इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? खत्म, न्यूट्रलाइज। अब ये जो बेटा आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या बन गया? तो इसकी वैलेंसी भी बराबर आ गई, 2 4 2 6 2 8। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बन गया यहाँ पे इस तरह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? तो जहां पर भी आप, अब अगर आपके पास मान के चलिए बेटा है यहाँ पे OH नेगेटिव है, इस तरह मैं समझाऊंगा आपको। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। देख रहे हो आप? अगर आपके पास बेटा SH नेगेटिव है, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपके पास OR नेगेटिव है, ये क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? क्योंकि अगर आप देख रहे हो ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल्स है। ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, अगर यहाँ पे RX होगा तो X खुद ब खुद निकल जाएगा, ये खुद ब खुद निकल जाएगा। इसकी जगह पे कौन आएंगे? ये वाले आएंगे। तो ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है ना? या इस तरह है, Cl नेगेटिव है बेटा, ये ONO नेगेटिव है बेटा। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? NC है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि ये आपको समझ आ गया कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो ही आएंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल्स और गुड लिविंग ग्रुप्स, वो उनको जगह देंगे और उनकी जगह पे कौन आएंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसी ऐसी रिएक्शनों को हम बेटा कहते हैं, ये फर्स्ट वाली आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो अब बेटा इसमें, अब इसमें ये है कि ये तो आपको समझ आया। अब इसमें बेटा एक चीज है इसमें ये कि अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इसके लिए मैं अलहदा इसी में एक लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें थोड़ा बहुत मैं इसमें ये बताऊंगा। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये फॉलो करते हैं, या तो करते हैं बेटा SN1, थोड़ा काइनेटिक्स आप पढ़ रहे हो इस टाइम, वो SN1 SN2, ये थोड़ा याद रखिएगा। क्योंकि इसका मैं इसी में एक और, जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आएगी, व्हाट आर द फैक्टर्स, वहां पे हम देखते हैं कि जो ये SN1 SN2 किस तरह फॉलो होता है, मीडियम क्या है, प्रोटिक है अप्रोटिक है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, नेचर ऑफ ये क्या न्यूक्लियोफाइल क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस मत है। ठीक है बेटा कि नहीं है? वो सारी, या स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, तो वो सारी चीजें मैं उसका मैं अलहदा एक लेक्चर बनाऊंगा, इसी में बनाऊंगा, हेलो अल्केन में ही, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में ही। फिलहाल हम ये कंप्लीट करेंगे, इसकी जो ये केमिकल रिएक्शन है उसके बाद में बनाऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं बेटा बताऊंगा ये थोड़ा सा। जब SN1 और SN2 क्या है? S का मतलब हो गया बेटा सबस्टिट्यूशन, S का मतलब क्या हो गया? सबस्टिट्यूशन। N का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक। तो इसका मतलब आपको समझ आया कि S का मतलब सबस्टिट्यूशन है, यहां पर भी S का मतलब यही है, सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन। और N का मतलब बेटा क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, यानी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। ठीक है कि नहीं है? मगर यहाँ पे बेटा 1 है, तो इसको बेटा कहना फर्स्ट ऑर्डर। इसको बेटा क्या कहते हैं? आपने पढ़ा है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ पे बेटा क्या है? ये SN2 है, तो ये क्या फॉलो करता है? 2 का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर शो ये करता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाट इज सेकंड ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू कंसंट्रेशन टर्म्स डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन is dependent on two concentration terms। ठीक है ना? इन रेट लॉ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां तक ठीक है ना बेटा? ये ठीक है ना? तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें बेटा क्या है? सेकंड ऑर्डर है। ये भी S मीन्स सबस्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक। तो इसका मतलब यही होता है बेटा, अगर हमारे पास RX है, यानी R मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसकी जगह पे कौन आता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो वीक न्यूक्लियोफाइल्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स, गुड लिविंग ग्रुप्स, गुड लिविंग ग्रुप्स। ठीक है ना बेटा? इसकी जगह पे क्या आएगा जब ये बनेगा? ये आएगा SN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या निकलेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा कि नहीं? अब ये भी याद रखना चाहिए, ये जो SN1 है ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये याद रखना बेटा। ये क्या है? ये 2 स्टेप प्रोसेस है।
मतलब ये 2 स्टेपों में होता है। मगर ये जो बेटा होता है ना SN2, ये 1 स्टेप प्रोसेस है। ये क्या है, मतलब ऐसी रिएक्शन क्या होती है बेटा, यूजुअली एक ही स्टेप में होती है। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये एक ही स्टेप में होती है। और ये क्या होती है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये किस में होती है, 2 स्टेपों में होती है। और ये किस स्टेप में होती है बेटा, एक स्टेप में होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मैं अलहदा, मैंने अभी कहा कि लेक्चर में बड़ा बनाऊंगा इसका, इसके बाद जब केमिकल रिएक्शंस खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने कहा, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसपे ये डिपेंड करता है, SN1 SN2, ठीक है कि नहीं है। कौन दोनों दिखा सकता है, कौन SN1 कौन SN2, किसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर मीडियम प्रोटिक अप्रोटिक उससे क्या होगा, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट से क्या होगा बेटा, वहां पे रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल का मतलब इस्तेमाल अगर डिफरेंट करेंगे तो उससे क्या होगा बेटा, ठीक है ना बेटा। ये सारी चीजें मैं उसमें समझाऊंगा, यहाँ तक ठीक है ना बेटा। देखिए अब बेटा, तो ये SN1 जो है बेटा, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। SN ये जो है बेटा, ये क्या है, ये इस तरह है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा फिलहाल, एक सीधी सी एग्जाम्पल है, RX है। और यहां से मैंने बेटा लाया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये इस तरह है बेटा, यहाँ पे ये मान के चलिए इस तरह है। अभी मैं कुछ नहीं, स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ नहीं अभी टच में कर रहा हूँ। न मैं अभी न मैंने अभी आपको बेटा वो वेज बनाई, न मैंने अभी आपको इस तरह दिखाया जो ये, न मैंने इस तरह आपको दिखाया, न मैंने इस तरह आपको दिखाया, ठीक है बेटा कि नहीं है। इस तरह मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, ये हम डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे बेटा ये है कि वेज जो ये जो हमारी तरफ आ रही है जो बॉन्ड है, और जो हम डैश में लेते हैं वो अंदर की ओर है, और जो बाकी बॉन्ड्स है वो प्लेन पे है। चलो वो बात की बात है, वो उसी में देखेंगे। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है बेटा, यहाँ पे मुझे क्या समझाना है, यहाँ पे मुझे बेटा ये समझाना है कि जब ये न्यूक्लियोफाइल अगर इस तरह है बेटा, यहाँ पे ये का H है, यहाँ पे बेटा क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है बेटा ये न्यूक्लियोफाइल, ये थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। जो ही अब क्या होगा, यहाँ से बेटा क्या है, इसके साथ क्या अटैच है, यहाँ से मान के चलिए X अटैच है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या अटैच है, X अटैच है, यहाँ पे बेटा क्या है, X अटैच है, ठीक है ना। मगर जो ही ये इस तरह से आएगा तो यहाँ पे रिपल्शन होगी, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पर भी ये भी है, हाइड्रोजन्स है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको अगर कोई यहाँ से आता है उसको रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन उसी में बताएंगे। जब इसमें अब ये कहाँ से आएगा, यहाँ से अगर आएगा तो ये बेटा क्या होगा, यहाँ पे इस तरह आप समझे, ये इस तरह है, ये इस तरह जब ये इसके साथ इंटरेक्ट होगा, किसके साथ, इसके साथ इंटरेक्ट होगा, ठीक है बेटा कि नहीं। इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, क्योंकि ये फिर खुद ब खुद वीक पड़ रहा है और बाहर निकलेगा, और इसमें बेटा ये बनेगा, इस तरह बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ये एक ही स्टेप में हो रहा है। ऐसा कुछ मैंने प्राइमरी ले लिया, मैंने सीधा लिया CH3, इस तरह आप लीजिए X, आपने लिया OH नेगेटिव सपोज, ये कहाँ से आ गया, इसको यहाँ से आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसके दरमियान क्या होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है ना। और ये क्या पड़ेगा बेटा, वीक पड़ेगा, ये बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा CH3OH, मिथनॉल बन गया, ठीक है। मगर ये एक ही स्टेप में हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब एक ही स्टेप में कोई चीज, यही पे मुझे ये कहना है कि जब एक ही स्टेप में हो रहा है तो इसको बेटा क्या कहेंगे, यहाँ पे हाँ रेट ऑफ रिएक्शन अब किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे, इस पे भी डिपेंड कर रहा है उतना ही इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो बेटा इस पे जो हमने ये रखा यहाँ पे CX, और दूसरा क्या बेटा ये जो न्यूक्लियोफाइल लिया, तो ये क्या बन गया, इसका फर्स्ट ऑर्डर, इसका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया बेटा, SN2 इसने दिखाया, SN2 इसने दिखाया, ठीक है ना। मगर ये कितने स्टेपों में हो गया, 1 स्टेप, जो मैंने अभी कहा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिलहाल आप इतना याद रखिए, ठीक है कि नहीं है। बाकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, बाकी इफेक्ट्स, प्रोटिक अप्रोटिक, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ रिएजेंट, इसको बेटा कहते हैं सबस्ट्रेट और इसको बेटा कहते हैं रिएजेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा। तो अब उसमें क्या हो रहा है, अगर हम देंगे बेटा, अब ये वाला जो है जिसमें बल्कि ग्रुप्स है, इस तरह ये वाला,
अगर इस तरह होगा बेटा, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमें ये बॉन्ड तोड़ना है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या बनेगा बेटा, जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये बनेगा ये वाला टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया, ये बन गया, और यहां से बेटा क्या निकल गया, Cl नेगेटिव। ये कौन सा स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, क्योंकि इसमें एनर्जी देनी है, ये खुद ब खुद नहीं होगा। फिर दूसरा अगर लेंगे इसमें ये वाला बेटा, अगर ना इस तरह होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, अब क्या लेंगे बेटा, OH नेगेटिव। ये एसिड बेस रिएक्शन है, बेस है, ये एसिड एक्ट करता है, तो वहां से क्या बनता है बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है कि नहीं, ठीक है ना, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल बनता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें ये कौन सा स्टेप है बेटा, ये फास्ट स्टेप है। अभी मैं थोड़ा सा ये समझा रहा हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप कौन है, ये वाला CH3 ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि ये हमें पता है काइनेटिक्स में फास्ट रिएक्शन का कोई भी इंपॉर्टेंस महत्व नहीं है, मगर इसमें कौन सा, ये जो स्टेप फर्स्ट है इसी का महत्व है। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मगर ये कितने स्टेपों में हो गई, ये तो सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल है। अब ये कितनों में हो गई बेटा, 2 स्टेपों में हो गई, तो ये बेटा क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। फिलहाल हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखा कि SN2 मैकेनिज्म दिखा रहे हैं, और ये वाले देखा कि ये क्या दिखा रहे हैं, टर्शियरी, ये दिखा रहे हैं बेटा SN1 मैकेनिज्म, ये क्या है बेटा, 2 स्टेप प्रोसेस, क्योंकि ये जो स्टेप है इसमें ये फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइन नहीं करता, ये हमने काइनेटिक्स में पढ़ा भी है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे, इस पे। तो ये क्या दिखाएगा, सबस्टिट्यूशन इसमें हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन है, तो SN, तो क्या कौन सा ऑर्डर दिखा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिखा रहा है। तो बेटा समझ आ रही बात की नहीं आ रही। देखो अब जो हमारा मुद्दा है वो है केमिकल रिएक्शन इसकी। अब है बेटा इसकी जो ए वाला है, जो मैंने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक 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 सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब फर्स्ट आ रही बेटा रिएक्शन ऑफ अब बेटा इसकी अब हमें क्या करना है, हमें किनको ट्रीट करना है, अल्काइल हलाइडों को या हैलो अल्केनों को। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लेंगे बेटा। हमारे पास RX है, हमने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या आप NaOH लीजिए, सोडियम पोटैश। इसको क्या बनाएंगे बेटा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ROH, और क्या बनेगा KX। अगर आपसे कोई भी पूछेगा क्या हो रहा है इसमें, तो आप सीधा कहना ये कि ये आपको पता ही है, जब R और X क्या टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या बनेगा R पॉजिटिव, ये क्या बनेगा बेटा X नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और यहाँ पे जब ये टूटेगा ये क्या देगा, ये आयनिक है, ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या, ये आयन किधर जाएगा बेटा, OH, ये क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी ओर जाएगा, इसकी ओर, वीक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे बेटा ये बन गया। एग्जाम्पल आप लीजिए CH3Cl, एग्जाम्पल एक और लीजिए CH3CH2Cl, इसको किसके साथ मिलाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा बेटा CH3OH, और क्या निकलेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसको मिथनॉल कहते हैं, इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसको कार्बिनॉल भी कहते हैं, जब कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH2OH। इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको इथेनॉल कहेंगे, या इथाइल अल्कोहल, या इसको कहेंगे मिथाइल कार्बिनॉल, क्योंकि जब कार्बन के साथ डायरेक्टली OH होता है उसको कहते हैं कार्बिनॉल सिस्टम। तो ये क्या है, मिथाइल कार्बिनॉल। तो इसमें क्या हमने किया, इफ alkyl halide is if alkyl halide is alkyl halide is treated with किसके साथ बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, formation of alcohols takes place, formation of alcohols takes place,
formation of alcohols takes place, alcohols takes place with the elimination of, और क्या निकलेगा वहां से, the elimination of, with the elimination of potassium chloride या sodium chloride, potassium chloride या sodium chloride। बात समझ में आ रही कि ना। तो ये आपको आया कि यहाँ पे OH अब आ गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और X बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें क्या बनते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। दिखाया कैसे, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट एक्यूर्स डेल नेगेटिव चार्ज वायर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डिपार्ट डेल पॉजिटिव, यहाँ से ये टूटेगा K पॉजिटिव OH, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये क्या आएगा, ये है बेटा ये एक्वस। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ये यहाँ पे आएगा और ये। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। देखिए आप इसी में अगर हम देखेंगे, अगर इसी अल्कोहल को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, अगर हम लेंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। अगर इसको बेटा किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा AgOH बनेगा ना 2 टाइम्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन गया कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इस तरह मैंने किया, यहाँ पे 2 बार आ गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इस तरह। अगर हम मॉइस्ट लेंगे, मगर अगर ड्राई लेते हैं वहां पे इथर्स बनते हैं। अब छोड़िए उसको, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने यही बेटा एक्स लिया, अल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ पे इसको किसके साथ ट्रीट किया, AgOH के साथ। तो बताइए क्या बनेगा, इसको हीट अप करेंगे, बॉईल करेंगे, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ROH अल्कोहल और बनेगा AgX। इस तरह भी आप दिखा सकते हो। तो एग्जाम्पल अगर आप लोगे बेटा CH3Cl, तो यहाँ पे लोगे AgOH, इसको हीट अप करोगे तो क्या बनेगा बेटा CH3OH और क्या बनेगा AgCl। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो क्या बन गया बेटा, मिथनॉल बन गया, यही सेम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन गया बेटा, मिथाइल क्लोराइड, ये क्या बन गया बेटा, मिथाइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सेकंड वन, अब दूसरे इसमें देखेंगे बेटा, मतलब हाँ सेकंड वन, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स या हैलोअल्केन्स, अल्काइल हलाइड्स विद सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। इसमें बेटा लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, इसमें बेटा लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। इसको बेटा कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसको बेटा कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो सोडियम अल्कोक्साइड क्या है बेटा, अगर अल्कोहल है आपके पास बेटा, ठीक है ना, अल्कोहल से अगर हम प्रोटॉन निकालेंगे यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, अगर सोडियम से बेटा क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, एक वो क्या बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या बनेगा हाफ टाइम्स हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे ये आ गया इसके साथ, ये क्या बन गया बेटा RONA, इसी को बेटा क्या कहते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। अब इसमें भी क्या करेंगे बेटा, यही RX लेंगे, तो इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे RONA, ये बेटा पता है आपको क्या निकलेगा इसमें बेटा, ये आपको पता है क्या निकलेगा इसमें बेटा, इस तरह निकलेगा, ये जो है ये निकलेगा, ये इसके साथ आएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बेटा ROR, तो क्या बनेगा बेटा NaX, ठीक। अगर एग्जाम्पल लेंगे बेटा CH3Cl और लेंगे बेटा CH3ONA, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, ये क्या बनेगा बेटा CH3O CH3 और क्या बनेगा NaCl, ये क्या बनेगा डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, या इसको बेटा क्या कहेंगे मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन हीट करेंगे इसको, ठीक है ना बेटा कि नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल एक और अगर लेंगे बेटा CH3 CH2Cl, इसको क्या कहेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, इसको बेटा क्या कहेंगे क्लोरोइथेन, इसको बेटा कहेंगे क्लोरोइथेन, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपको पता है Na और Cl निकल जाएगा और इसके साथ कौन सा आएगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH2, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है OCH3,
और क्या निकलेगा NaCl। इसको क्या कहेंगे बेटा, अल्फाबेट के लिए पहले ई आएगा। ईथर आपने पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर्स आप देख लीजिएगा, मैंने पढ़ा है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। इसमें नाम क्या आएगा, इथल मिथल ईथर, या इसको कहेंगे मिथॉक्सी इथेन, चेन बड़ी आनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मिथॉक्सी, ये समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इसी को बेटा कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या किया हमने इसमें, CH3Cl था, ये निकला एज सच CH3 पॉजिटिव, और क्या निकला बेटा, Cl नेगेटिव। दूसरा क्या आ गया, अब जो हमारा NaOCH3 है, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे बेटा, अब जो मैंने इसको कहेंगे सोडियम मिथॉक्साइड, इसको क्या कहेंगे, सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है ना बेटा। तो ये जब ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव, Na किसके पास जाएगा, इसके पास। O नेगेटिव किसको, ये जब निकलेगा, ये CH3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या बन गया बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सीमीथेन, ठीक है ना बेटा। देखिए तो हमने क्या किया इसमें, अगर हम ले रहे हैं ये CH3, जो ऊपर वाला मैंने लिया था, जो पहले वाले CH3Cl लिए, उसको किसके साथ ट्रीट किया, पहले में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आप याद रखिएगा इस तरह। इसमें हमने क्या लिया, यही लिया, तो किसके साथ मिलाया हमने बेटा, लिया NaOCH3 सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो क्या करते हैं हम इसमें, आप बताइएगा क्या करेंगे इसमें, इस तरह आपको दिखाना, वहां पर भी पहले वाले में इस तरह ये निकला, ये KCl निकला बेटा, ये क्या बन गया, मिथनॉल बन गया। अगर जनरल लेंगे ROH बनेगा, इसमें भी क्या निकलेगा, ये बेटा निकलेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, NaCl निकलेगा, और क्या बनेगा बेटा, CH3OCH3, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। जरा इसको देख लीजिएगा आप। तो मैंने क्या किया इसमें, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में, ये जो आपका CH3Cl था, तो ये जब टूटेगा, ये क्या आएगा, इस तरह क्या बनेगा बेटा, CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन, और क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, ये लिविस एसिड एक्ट करेगा। अब जो हमने लिया बेटा NaOCH3, अब इसमें क्या जाएगा, ये निकलेगा एज Na पॉजिटिव, ये क्या निकलेगा एज Na, तो ये अलग हो जाएगा, तो Na पॉजिटिव जब हीट करेंगे OCH3 नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अब ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा इसके पास, क्या बन गया यहाँ पे, NaCl। अब ये जो बेटा है, ये वाला जो है, ये किसके पास जाएगा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म, ये क्या बनाएंगे आपस में बॉन्ड, ये बन गया बेटा इस तरह CH3। जब O आएगा यहाँ से, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ये क्या है बेटा, OCH3 नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, बॉन्ड बन गया, ये बन गया डाइमिथाइल ईथर। इसी तरह इथाइल मिथाइल ईथर बनाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसमें क्या हमने किया, व्हेन व्हेन शाबाश बताओ आप, when alkyl halides are treated with when alkyl halides are treated with, किसके साथ बेटा ट्रीट किया, सोडियम अल्कासाइड के साथ, सोडियम अल्कासाइड के साथ, क्या बन गया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स टेक्स प्लेस, ईथर्स टेक्स प्लेस। हमें पता है विद एलिमिनेशन क्या निकलता है वहां से, NaCl। इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको बेटा कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। ये आगे चलकर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे और भी लेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेंगे यहाँ से, उसमें क्या होगा, चलो वो बात की बात है, फिलहाल ये आपको समझ आया हो। तो ये बेटा थी सेकंड वन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। थर्ड, हाँ इसी में थोड़ा बहुत और मैं बताना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे बेटा लूंगा ये CH3Cl, अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स लूंगा, अगर मैं यहाँ पे यही लूंगा बेटा ड्राई, वहां पे मॉइस्ट लेते थे, ये याद रखना, यहाँ पे मैं ड्राई लूंगा Ag2O, ठीक है ना। ये मैं इस तरह भी बना सकता हूँ, ये भी याद रखिएगा, जिस तरह वहां पे मैंने CH3Cl, ये 2 टाइम्स है, यानी ये इस तरह है CH3Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा ये क्या आएगा, ये Ag2O, मतलब ये Ag2 है और ये O है, ये किस तरह कनेक्टेड है,
ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 6, इसको कितने चाहिए 2। सिल्वर जब लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा Ag पॉजिटिव, दूसरा करेगा एक और तो क्या आएगा Ag पॉजिटिव। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये पकड़ेगा तो क्या आएगा बेटा, मतलब अगर इसने अब ये आ गया इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा बेटा नेगेटिव। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, अगर इसमें देखेंगे ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा एज CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। दूसरा क्या निकलेगा CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये Cl और Ag क्या आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ट्वाइस AgCl बन गया। ठीक है बेटा कि नहीं, वहां पे क्या रह गया फिर CH3 पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव। यहाँ से ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है 2 4 5 6 और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसने कितने इलेक्ट्रॉन पकड़े बेटा, इसने यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना, पकड़ा ना इसने, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पकड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे, तो क्या बनेगा बेटा, ये इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इसने पकड़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज। तो इसने पकड़ा ना एक, अगर ये ऑक्सीजन था बेटा 2 4 5 6 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका पकड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसका पकड़ा। ठीक है बेटा कि नहीं है, तो उसकी वजह से ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा वहां से CH3O CH3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया बेटा, इसमें सीधा हमने लिया CH3Cl2 टाइम्स, ये क्या है ड्राई Ag2O, तो यहाँ पे लिखना है ड्राई, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये आपको पता है, ये बनेगा ईथर, यानी ईथर्स में डाइमिथाइल ईथर, और क्या बनेगा 2 टाइम्स AgCl। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखिएगा इसके बाद थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ alkyl halides या haloalkanes, reaction of alkyl halides with sodium hydrosulfide, sodium hydrosulfide। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड क्या है बेटा, अगर RX लेंगे, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड हो गया बेटा ये NaHS, या K भी ले सकते हैं KHS, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, आपकी चॉइस KHS लीजिए या ये लीजिए। ठीक है ना, इसमें भी क्या होगा, जब ये तोड़ टूटेगा ये क्या देगा Na पॉजिटिव और क्या बनेगा HS नेगेटिव बनेगा कि नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी जगह पे जाएगा, इसकी जगह पे, तो क्या आएगा, इसको हीट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको क्या, ये क्या बनेगा यहाँ पे बताइएगा। इसमें हालांकि मीडियम इथेनॉल भी देते हैं, तो इसका क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा यहाँ पे RSH और क्या निकलेगा NaX। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे मिथाइल मरकप्टन या मिथाइल थायोल। जरा एग्जांपल लीजिए, CH3Cl प्लस NaHS क्या बनेगा, CH3SH को क्या कहते हैं मिथाइल थायोल या थायोमिथाइल या मिथाइल मरकप्टन, पढ़ा है मैंने, आप इंट्रोडक्शन चेक कीजिए थायोल की, NaCl या KCl बनेगा। एग्जाम्पल अगर एक और लेंगे, इसको नाम साथ रखना क्लोरोमीथेन, इसको बेटा क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। और वहां से क्या बनेगा ये, तो ये क्या आ गया CH3 CH2 Cl और किसके साथ ट्रीट करेंगे NaHS के साथ, तो क्या बनेगा ये बनेगा CH3 CH2 SH और क्या बनेगा बेटा NaCl। ठीक है ना, यही सेम पोजीशन इसमें भी है बेटा, ये आप लिख सकते हो। तो इसमें क्या बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स, फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स, उसमें जो हमने पहले लिखी उसमें लिखना फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या करते हैं, इफ अल्काइल हलाइड ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, अल्काइल हलाइड हमने प्राइमरी लिया तो वाया ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि हमने प्राइमरी लिया तो यहाँ से आएगा ये। ठीक है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, व्हेन अल्काइल हलाइड इज ट्रीटेड विद किसके साथ बेटा, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ, तो क्या बन गए फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स। थायो का मतलब सल्फर है, फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स विद एलिमिनेशन ऑफ सोडियम ये हैलाइड। ठीक है बेटा, क्या हो गया इसमें भी,
जब ये बेटा क्या किया हमने इसमें हमने क्या किया, ये जो NaHS है, जब ये निकलेगा Na पॉजिटिव, ये क्या बनेगा NHS नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, एक्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये जब निकलेगा, ये क्या, ये जब निकलेगा ये कैसे निकलेगा, ये क्या आएगा CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी जगह पे क्या जाएगा, ये जाएगा, तो क्या बनेगा ऐसे बन गया मिथाइल थायोल। ठीक है बेटा कि नहीं, थाइल थायोल कोई भी आप बनाइए। ये हो गई थर्ड रिएक्शन। फोर्थ वन, a reaction of alkyl halides, with sodium sulfide Na2S, sodium सल्फाइड के साथ। तो क्या करेंगे बेटा, यही RX देंगे, इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, NO2S के साथ हीट करेंगे इसको। तो बताइए बेटा क्या होगा इसमें, शाबाश, इसमें ये 2 टाइम्स देते हैं, तो इसमें बेटा बनता है थायोईथर SR, और ये बनेगा ट्वाइस NaX। देखिए एग्जाम्पल, 2 टाइम्स CH3Cl प्लस Na2S हीट, तो ये बनेगा CH3S CH3 2 टाइम्स NaCl। इसको ये भी आप इंट्रोडक्शन ऑफ थायोईथर्स चेक कीजिए, ये मैंने दी है इसके बारे में इंट्रोडक्शन, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ये बेटा यहाँ पे है S। इसको बेटा क्या कहेंगे, डाई अल्काइल सल्फाइड, या इसको क्या कहते हैं बेटा, डाईमिथाइल थायोईथर, डाईमिथाइल थायोईथर। थायो मीन्स सल्फर, ईथर जैसा है, ईथर में O लिंकेज होती है, यहाँ पे S, या डाईमिथाइल सल्फाइड। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी क्या हो रहा है मैकेनिज्म अगर देखेंगे, तो इसमें क्या बनते हैं बेटा, थायोईथर्स, फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर्स, फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर्स। क्या होता है इसमें भी बेटा, अगर इसमें भी ये RX 2 मॉलिक्यूल से टूट जाएंगे, ये आपको पता है, ये निकलेगा R पॉजिटिव और दूसरा निकलेगा X नेगेटिव और X नेगेटिव, यहाँ तक ठीक है ना। तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, इफ 2 मोल्स ऑफ क्या, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड किसके साथ ट्रीट करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद किसके साथ बेटा, सोडियम सल्फाइड के साथ, Na2S के साथ, formation of thioethers takes place, formation of thioethers takes place with the elimination of क्या निकलेगा बेटा, वहां से बेटा निकल गया ये सोडियम हैलाइड। तो ये बन गया, यहाँ पे ये सोडियम जब टूटेगा ये क्या देगा, Na पॉजिटिव, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लेगा एक, फिर एक लेगा, यहाँ पे आएगा ना बेटा, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। जब इसने मतलब जब ये सोडियम जो है बेटा, ये किस तरह है, यहाँ पे ये है 2 टाइम्स Na पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये क्या है 2 नेगेटिव, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सीधी सी बात है, वहां पे ये था। अब यहाँ पे बेटा क्या आएगा, सीधी सी बात है, इसमें जो ये क्या कहते हैं इसको, अब जो S है, वहां पे O था, वहां पे O2 नेगेटिव था, यहाँ पे क्या है S2 नेगेटिव है, तो एक आ रहेगा यहाँ से, एक आ रहेगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ये क्या बनेगा RSR। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। ये फोर्थ थी। फिफ्थ है बेटा रिएक्शन ऑफ, ये सारी क्या चल रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया क्या है SN, 2 मैकेनिज्म, 1 स्टेप प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ alkyl halides, reaction of alkyl halides with sodium acetylide, या अल्कनाइड, सोडियम अल्कनाइड भी लिख सकते हैं अगर जनरल में देखेंगे। इसमें बनाते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस। तो इसमें बेटा क्या करेंगे, यही RX ट्रीट करेंगे किसके साथ, अब यहाँ पे बेटा इसको यहाँ पे इस तरह लेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये यहाँ से प्रोटॉन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, ये बन गई बेस।
बाद न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो आप मुझे बताइए क्या होगा इसमें बेटा, ये क्या बनेगा, इसको हीट अप करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे NaX निकल जाएगा, इस तरह याद रखिएगा, NaX NaX निकल जाएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो उसकी जगह पे क्या आएगा यहाँ पे, ये निकल गया, ये क्या आ गया C, यहाँ पे H 6 2 8, तो क्या बन गया हायर अल्काइल। अगर एग्जाम पहले आप मैकेनिज्म इसका क्या आएगा, RX तोड़ेंगे, ये क्या देगा R पॉजिटिव X नेगेटिव, वीक न्यूक्लियोफाइल निकल गया। फिर मैंने लिया सोडियम एस्टालाइड, एस्टिलीन इसको कहते हैं, एस्टिलीन। अगर एस्टिलीन से प्रोटॉन निकालेंगे, ये एसिडिक भी होता है, एसिडिटी इसकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन्स और अल्काइंस, बताया है मैंने। वो हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे, जब सोडियम आएगा तो क्या बनेगा, सोडियम एस्टालाइड। अगर अल्काइन होगा पूरा बड़ी चीज, सोडियम अल्कनाइड, ठीक है ना, तो ये आ गया। जब यहाँ से निकलेगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये क्या एक्ट करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी जगह लेगा, इसकी जगह, ये कहाँ पे आएगा। तो एक इसमें अगर कितने कार्बन है तो अल्काइन बड़ा बन गया ना, अगर पहला मेंबर छोटा था 2 मेंबर, मगर अगर हमने कोई और, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेटा दूंगा एग्जांपल CH3 CH2 Cl, ठीक है ना, या मैं लूंगा CH3 Cl, दोनों कंडीशनों में ले रहा हूं मैं बेटा NaCH, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सोडियम एस्टालाइड, यहाँ पे मैंने ले लिया बेटा यही। तो आप मेंबर चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे प्रोपेनाइड भी बना ले सकते हो। तो इसको बेटा हीट कीजिए तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये निकलेगा बेटा इस तरह, ये क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, ये निकलेगा इस तरह, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये निकलेगा यहाँ पे, ये निकलेगा इस तरह, उसकी जगह पे कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या बनेगा फिर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बन गया 1 ब्यूटाइन, हायर मेंबर बन गया अल्काइन नहीं। अब इसमें क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या कहेंगे 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन बस। तो इसमें हमने क्या किया, इफ alkyl halide, alkyl halide is treated with sodium alkanide, formation of higher alkynes takes place, formation of higher alkynes takes place with the elimination of, निकला क्या, सोडियम सॉल्ट, आप पोटेशियम ले लो सोडियम सॉल्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये फिफ्थ थी। सिक्स्थ वन, reaction of alkyl halides, reaction of alkyl halides with, reaction of alkyl halide with किसके साथ बेटा, सोडियम एस्टेट, सोडियम एसिटेट। देखेंगे क्या बनेगा इसमें, हम लेंगे बेटा RX, सोडियम एस्टेट क्या हो गया बेटा, सोडियम एस्टेट हो गया CH3CONA, इसको बेटा सोडियम एस्टेट कहते हैं। अब इसमें लेंगे बेटा CH3CONA, या सिल्वर एस्टेट भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है ना, ये भी ले सकते हैं RX प्लस CH3, ये भी ले सकते हैं बेटा, अगर जनरल में RCOAG ये भी ले सकते हैं। तो क्या होगा जरा आप मुझे बताइए, यहाँ पे क्या निकलेगा, यही Na, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा R, शाबाश, क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया एस्टर्स। तो इसमें क्या बनते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स टेक्स प्लेस। देखो इसमें भी बेटा क्या निकलेगा, AgX निकलेगा, यहाँ पे NaX है, यहाँ पे बेटा जब ये निकलेगा तो AgX निकलेगा, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा RC डबल बॉन्ड OO, यहाँ पे क्या है R, तो क्या बन गया एस्टर। अब मैं ये सिखाऊंगा थोड़ा बहुत आपको, यहाँ पे मैकेनिज्म में RX बेटा है, यहाँ पे आप मुझे बताइए ये टूटेगा, ये क्या देगा R पॉजिटिव, वीक न्यूक्लियोफाइल निकल गया। यहाँ से बेटा जो आपने लिया, अब चलो मान के चलिए यही लिया RCOOAG, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा, तो ये क्या बनेगा बेटा RCO नेगेटिव, तो ये क्या निकल गया Ag पॉजिटिव, ये किसके पास चला गया, बन गया AgX, ठीक है ना, इसको एफिनिटी भी अच्छी है इसके साथ। तो ये क्या आएगा,
ये क्या एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियस लविंग है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरह है बेटा RCOO नेगेटिव। तो ये किसके पास जाएगा बेटा, इसके पास जब जाएगा तो ये क्या बन गएगा, सीधा RCOOR। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें क्या हमने किया देखिएगा, तो इसमें हम बेटा क्या लिखेंगे आप, इफ alkyl halides if alkyl halides are treated with सोडियम एसीटेट या और सिल्वर कार्बोक्सिलेट लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ दिस एस्टर्स टेक्स प्लेस फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स टेक्स प्लेस। तो क्या करेंगे इसके लिए बेटा, अगर एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ही आप लेंगे यहाँ पे CH3Cl क्लोरोमीथेन, नाम साथ रखना जब भी एग्जाम में आएगा क्लोरोमीथेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने CH3COONA लिया, इसका नाम क्या आएगा बेटा, सोडियम एसिटेट ले लिया कि नहीं। तो यहाँ से बेटा क्या बनेगा, ये Na और ये Cl निकलेगा, तो क्या बनेगा CH3COO इसका नाम क्या आएगा बेटा, मिथाइल इथेनोएट। और एग्जाम्पल क्या, ये क्या निकला NaCl। ठीक है ना। अगर ये वाला लेते फॉर एग्जाम्पल में ये वाला लेंगे बेटा CH3CH2Cl, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल CH3COOAg लिया, तो क्या होगा बेटा, इसमें यही ये AgCl निकलेगा, तो क्या बनेगा बेटा इसमें CH3C डबल बॉन्ड OO, मगर यहाँ पे क्या है, 2 मेंबर वाला है, तो क्या आएगा CH2CH3। इसका नाम क्या आएगा बेटा, इथाइल इथेनोएट। ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। ये थी बेटा छठी। अब है बेटा आगे जाएंगे सातवीं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड विद सोडियम आयोडाइड। ये हमने किया है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन सोडियम आयोडाइड। इसको बेटा क्या कहते थे, फिनक्लिस्टन्स रिएक्शन। ये मैंने दिखाई है आपको, फिनक्लिस्टीन्स रिएक्शन फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। तो उसमें क्या किया उसने, अगर RX लेंगे, यूजुअली क्लोरीन या ब्रोमीन सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं स्टोन में, तो क्या बनाते हैं बेटा, ये सारा मैकेनिज्म मैंने बताया है। तो क्या बनेगा RI और क्या बनेगा NaX। एग्जाम्पल अगर लेंगे फॉर एग्जाम्पल बेटा CH3Br प्लस NaI सोडियम आयोडाइड इन स्टोन। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पे आयोडीन एक्सचेंज हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक है कि नहीं है, CH3I और NaBr। ठीक है ना। इस पे मुझे एक पॉइंट याद आ गया, वो आगे मैं बताऊंगा। तो ये क्या है बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे बेटा क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो गया, इसकी जगह पे कौन आ गया, ये जो ब्रोमीन निकल गया, तो इसकी जगह पे कौन आ गया, ये क्या कहते हैं इसको, आयोडीन। ये आप चेक कीजिए मैकेनिज्म फिनक्लिस्टन रिएक्शन, उसमें मैंने बताया है। तो ये आ गई सातवीं। आठवीं रिएक्शन है बेटा रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स या हेलो अल्केन्स, अल्काइल हलाइड्स विद अमोनिया विद अमोनिया। इसको बेटा कहते हैं हॉफमैन्स अम्यूनोलाइसिस रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आगे आती है, पहले मैं दिखाऊंगा। तो इसमें हम बेटा क्या बनाते हैं, पहले तो इसमें बनता है फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस, प्राइमरी अमाइन बनता है, मगर एक्सेस क्वांटिटी में अगर अल्कल हैलाइड होगा तो फिर क्या बनेगा, इसमें 2 डिग्री अमाइन भी बनता है बेटा, इसमें 3 डिग्री अमाइन भी बनता है, और इसमें बेटा क्वाaternary अमोनियम साल्ट्स भी बनते हैं, क्वाaternary अमोनियम
क्वाaternary अमोनियम साल्ट्स भी बनते हैं। क्वाaternary अमोनियम साल्ट्स भी इसमें बनते हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड विद दिस अमोनिया। तो इसमें बेटा क्या करते हैं, अल्काइल हलाइड लेते हैं, इसको बेटा ट्रीट करते हैं किसके साथ, RnH2 के साथ। यहाँ से ये बनाता है बेटा, हालांकि इसके लिए मीडियम अल्कोहलिक रखते हैं, तो ये क्या बनेगा बेटा, आर, ये आर एन ये जब ये सॉरी, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइड्स में अमोनिया, अमोनिया हमें लेना है यहाँ पे बेटा, ये बनेगा RnH2 और निकलेगा HX। पहले ये समझेंगे बेटा। देखिए इसमें जो मैंने आपको कहा कि रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स विद अमोनिया, उसमें बेटा पहले बनता है प्राइमरी अमाइन। अगर एक्सेस क्वांटिटी में हेलो अल्केन्स होंगे तो सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स बनते हैं। अब देखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे बेटा पहले आ रहा है RX, ठीक है ना, पहले आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है RX, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या बनेगा बेटा R पॉजिटिव, और क्या बनेगा X नेगेटिव। यहां तक ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास बेटा क्या है, अमोनिया है, मगर मैंने पहले कहा कि ये नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, क्योंकि लोन पेयर भी है, ये क्या एक्ट करेगा, लिविस बेस, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे इसमें क्या होगा बेटा। तो पहले आपने देखा कि आपने क्या लिया बेटा, आपने लिया RX, उसको किसके साथ ट्रीट किया, NH3 के साथ, तो वहां से क्या बन गया बेटा, वहां से बन गया बेटा RNH2, और क्या निकल गया HX, यही है ना। अब देखेंगे ये कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड, और इसको बेटा कहते हैं प्राइमरी अमाइन। अगर एग्जांपल लेंगे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, इसको क्या, ये क्या बनेगा CH3 मिथाइल अमाइन या अमाइनो मीथेन, ये क्या बनेगा HCl। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब क्या होगा इसके लिए, अब ये बन गया बेटा यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए इसके आगे क्या होगा। अब जो ये लोन पेयर है बेटा, ये X जो निकल, अब देखेंगे अब किसके दरमियान, अब इसको कहाँ जाना है, इसको बेटा जाना है यहाँ पे, तो ये R है, ये क्या है, कार्बोकैटायन है, ठीक है बेटा कि नहीं है। या कार्बोकैटायन इस तरह भी ले सकते हैं, अगर हम मिथाइल लेंगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे, ये जो NH3 बेटा है, ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। ये लोन पेयर किसको देगा, क्योंकि R क्या है, डिफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 2 निकले हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा आएगा, जो देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, उसके ऊपर नेगेटिव, मगर इसके ऊपर पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज। तो नाइट्रोजन को स्टेबल करने के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन से क्या करना है इसको बेटा, स्टेबल हाइड्रोजन को निकालना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है बेटा कि नहीं। ये क्या लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स, जब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स बेटा लेंगे तो इसमें क्या बनेगा, आप बताइए क्या, जब ये लेगा मतलब जब ये इसके, ये क्या निकलेगा एज H पॉजिटिव, बात समझ में। और H पॉजिटिव किसके पास जाएगा बेटा, ये जाएगा इसके पास, क्या बन गया, ये निकल गया एज HX, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये जो यहाँ पे जब इसने ले लिए ये, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कोवेलेंट में, क्या बन गया बेटा RnH2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। कोई फंडा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, क्योंकि ये भी एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने दिए तो पॉजिटिव, इसके नेगेटिव, मगर इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रोटॉन को निकालेगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी है, तो ये प्रोटॉन निकलेगा, X के साथ जाएगा, क्या बनेगा RnH2। अब इसके बाद बेटा फंडा है, तो फर्स्ट में अगर हमारे पास लिमिटेड अल्कल हैलाइड है, तो इसका मतलब इसको हॉफमैन अमाइनोलाइसिस क्यों कहते हैं भी कहूंगा। फिलहाल हमने ये बेटा बनाया, अल्काइल अमाइन हमें बन गया। अब देखो बेटा इसके बाद, अब इसके बाद जो हमारा ये RnH2 बन गया बेटा, अब हमारे पास क्या है, इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्काइल हैलाइड है, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्काइल हैलाइड है बेटा, एक्सेस अमाउंट में है, तो अब जब एक्सेस में है तो ये आएगा बेटा, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसमें क्या फंडा हो जाएगा, जरा आप बताइएगा, इसमें क्या होगा, फिर से ये लेगा, ये क्या बनेगा बेटा R पॉजिटिव, और क्या निकलेगा X नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। पहले हमने, अब देखेंगे इसमें क्या होगा इसके बाद बेटा,
अब जो ये बन गया यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगी इंटरेक्शन, ये क्या है बेटा, ये इस तरह है RNH, ये इस तरह भी रख सकते हैं H, ये H है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये किसको, इसको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, ये देगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज। अब क्या होगा इसमें, अब बताइए मुझे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या करेगा, फिर से एक और प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है ना। जब वो प्रोटॉन निकलेगा एज H पॉजिटिव, वो किसके साथ मिलेगा, इसके साथ, दूसरा HX बन गया। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, जब यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, ये सॉरी यहाँ पे ये इस तरह है बेटा, ये ये इस तरह है, मतलब नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसने ले लिया, तो ये क्या निकला इन द फॉर्म ऑफ, ये यहाँ तक एरो रखना है जहां तक बॉन्ड है, ये यहाँ तक बेटा रखना है, ठीक है ना बेटा, ये आ गया ये, हाँ ठीक। अब इसने यहाँ पे इसने ले लिया, जब ले लिया तो ये निकला H पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव खत्म हो गया, ये कौन सा बन गया, ये 2 डिग्री अमाइन बन गया, इसका नाम क्या है, डाई अल्किल अमाइन बन गया। तो इसका मतलब अम्यूनोलाइसिस इसको क्यों कहते हैं, लाइसिस, इसमें अमोनिया जो है बेचारा एक एक करके उसका हाइड्रोजन निकल रहा है, अब दूसरा हाइड्रोजन भी निकल गया, तो क्या बन गया बेटा, 2 डिग्री अमाइन। मैकेनिज्म मैंने दिखाया आपको क्या हो रहा है, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको फिर मैकेनिज्म आएगा। फिर अगले में क्या होगा इसमें बेटा, आगे चलकर इसमें क्या होगा बेटा, अब हमारे पास क्या बन गया, अब हमारे पास बेटा बन गया RN, ये डाई अल्किल अमाइन है या एन अल्किल अल्कन अमाइन, पढ़ा है आप, इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइन चेक कीजिए मेरा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा बेटा, RNH, ठीक है बेटा। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है ना। जब लोन पेयर है, एक्सेस क्वांटिटी में हमने रखा है RX, ये टूटेगा, ये क्या देगा R पॉजिटिव, और क्या देगा बेटा X नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या होगा इसमें, आप इसमें क्या होगा आप, और ये बनेगा बेटा RNR। तो यहाँ पे बेटा मुझे बताइए, अब इसमें मैं आपको कलर्ड में ही दिखाऊंगा, तो क्या होगा इसमें, अब ये जो ये लोन पेयर बनाएगा किसके साथ, इसके साथ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। फिर अनस्टेबिलिटी, ये क्या करेगा, फिर से लेगा इसका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ये बनेगा, जब ये क्या बनेगा, RN, R, ठीक है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, ये कोऑर्डिनेट किस में कन्वर्ट हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है बेटा कि नहीं है, हो गया कि नहीं। यहाँ पे क्या है बेटा, लोन पेयर, जो अब ये जो आपका निकला क्या, ये H जो निकला, ये किसके साथ मिलेगा, इस X के साथ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं, क्योंकि इसने किसके साथ बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके साथ। तो ये कौन सा अमाइन बन गया, 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, जिसको हम ट्राई अल्किल अमाइन भी कहते हैं, या अगर मिथल मिथल होगा मिथल तो क्या कहेंगे एन डाई मिथल मीथन अमाइन, अगर इसमें होगा मिथल तो क्या कहेंगे एन मिथल मीथन अमाइन, ठीक है बेटा कि नहीं है, यहाँ तक ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब क्या होगा, अगर अब फर्दर इसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास इसके पास अभी है क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ईजी है, लोन पेयर। अब हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, एक और X, तो ये टूटेगा, ये क्या देगा R पॉजिटिव, और क्या देगा X नेगेटिव। ये लोन पेयर किसके साथ अब बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बनाएगा RN, R इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बेटा R के साथ, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया R4N होल पॉजिटिव। ये किसको खींचेगा, इस साल्ट को, इसको क्या कहेंगे टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड बन गया, ठीक है ना, अमोनियम पॉजिटिव चार्ज है, अमोनियम हैलाइड, इसी को कहते हैं टर्शरी, ये क्वार्टनरी साल्ट बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब एक एक करके हाइड्रोजन निकल रहा है, जो हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी ऑफ अल्कल हैलाइड है, इसको नोट कीजिएगा। हाँ, ये 8वीं रिएक्शन थी। देखिए बेटा, अब हम एग्जाम्पल देंगे, अब आपको आएगा। अब हमने क्या किया इसमें, क्या बेटा करेंगे, फिलहाल CH3Cl लेंगे, या इथाइल क्लोराइड भी आप ले सकते हो, क्या लिया, अमोनिया। तो ये आपको पता है, हीट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, CH3 क्या बनेगा, CH3NH2, और क्या निकल गया
HCl। अब एक्सेस में अगर होगा, इफ एक्सेस ऑफ methyl chloride is available, methyl chloride is available, excess of methyl chloride is available, तो क्या होगा बेटा, मुझे बताइए क्या होगा, CH3, ठीक है ना। आप बताइए क्या होगा इसमें। अब जो हमने बनाया CH3NH2, ये किसके साथ ट्रीट करेगा, CH3Cl के साथ, क्या निकलेगा, क्योंकि अमोनिया का एक एक हाइड्रोजन बेचारे का खाली हो रहा है, तो क्या बनेगा, CH3 इसको क्या कहेंगे, डाइमिथल अमाइन, डाइमिथल मिथल अमाइन, या इसको बेटा क्या कहते हैं, एन मिथाइल मीथन अमाइन, एन मिथाइल। अब मुझे वहां नहीं जाना है, मीथन अमाइन, ठीक है ना। पहला वाला कौन बन गया था बेटा, ये जो हमने बनाया 1 डिग्री अमाइन था, ये कौन सा अमाइन बन गया, इसका नाम क्या है, मिथाइल अमाइन, इसका नाम क्या है बेटा, मिथाइल अमाइन, ठीक है ना बेटा। तो इसमें ये, अब फिर इसके बाद ये जब यही आएगा CH3 अभी इसके पास एक और हाइड्रोजन है, अभी CH3Cl आएगा, तो क्या निकलेगा, जो मैंने मैकेनिज्म में वही करना है, ये क्या आएगा, होल 3N, इसको क्या कहेंगे, ट्राइमिथल अमाइन, ये कौन सा ये बन गया, ट्राइमिथल अमाइन, ये क्या है बेटा, 3 डिग्री अमाइन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बन गया 3 डिग्री अमाइन, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ये 3 डिग्री अमाइन बन गया। तो इसके बाद क्या आएगा, अब CH3 होल 3N, अभी इसके पास अब लोन पेयर है, फिर से आ रहा है CH3Cl, ठीक है ना बेटा। फिर क्या होगा, CH3 होल 4N, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl, अब यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन कोई नहीं है, तो ये क्या आ गया, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें बेटा क्या है, इसमें क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, यह हमारी आठवीं रिएक्शन थी, यह हमारी आठवीं रिएक्शन थी, यह हमारी आठवीं रिएक्शन थी बेटा। तो इसमें क्या हो रहा है, सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, this type of reaction, if 1 mole of, if 1 mole of, क्या मिलाया हमने, if 1 mole of beta in this type of reaction, if 1 mole of this alkyl halide, alkyl halide is treated with, is treated with, is treated with, किसके साथ ट्रीट किया, is treated with, is treated with किसके साथ बेटा, अमोनिया के साथ, अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, formation of primary amines takes place, formation of primary amines, primary amines takes place with the elimination of hydrogen halide, with the elimination of, with the elimination of, with the elimination of hydrogen halide। मगर if condition है, if excess of, if excess of alkyl halide is taken, halide is taken, तो क्या होगा बेटा, फिर क्या होगा वहां पे, then 2 डिग्री 3 डिग्री एंड quaternary ammonium salts are formed, quaternary ammonium salts are formed। तो इसमें सारे नाइट्रोजन, क्या हाइड्रोजन निकल रहे हैं नाइट्रोजन के, तो इसीलिए इसको बेटा क्या कहते हैं, एग्जाम में आएगी हॉफमैन्स अमाइनोलाइसिस रिएक्शन, हॉफमैन्स अमाइनोलाइसिस रिएक्शन। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं है। नौवीं रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ alkyl halide with, reaction of alkyl halide with potassium nitrite, potassium nitrite, potassium nitrite या सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट। पहले देखेंगे बेटा, जो हमने अब तक देखे, चाहे आपका OH आ गया कहीं पे, चाहे आपका CH3 आ गया कहीं पे, चाहे S नेगेटिव आ गया कहीं पे, चाहे आपका कोई भी आ गया CH3CO नेगेटिव, कितने ही आपके पास आ गए, ठीक है कि नहीं है। कोई NH3 आ गया कहीं पे, वाटर है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। कहीं पे ये आ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ गया बेटा, स्लाइड आयन आ गया, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये सारे क्या है, ये
क्या डोमिनेट करते हैं, क्या बनाते हैं एक, ठीक है बेटा कि नहीं। तो इस तरह जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको बताया यूनिडेंटेट किसको कहते हैं, ये भी एक ही बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये एक साइड से ही आते हैं, तो इनको बेटा कहते हैं यूनिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स। इनको क्या कहेंगे, यूनिडेंटेट, क्योंकि ये भी बनाते नहीं, ऐसे कोऑर्डिनेशन में मुझे याद आ गया यूनिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, इनको कहेंगे बेटा यूनिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यूनिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स। बात समझ में, चाहे किसी पे नेगेटिव चार्ज हो किसी पे ना हो, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो भी ये क्या गुड, ये लिविस बेस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मगर दूसरे तरीकों के ये है बेटा, अगर साइनाइड आपने पढ़ा, ये NC यहाँ से भी आ सकता है, ये यहाँ से भी आ सकता है, या NO2 आपने पढ़ा, आप चेक कीजिए मेरा, अल्काइल नाइट्राइट्स नाइट्रो अल्कीन्स, या यहाँ से आ सकता है, या SCN है यहाँ से आ सकता है, NCS है यहाँ से आ सकता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो मुझे आप यहाँ पे बताइए ये कि, आप मुझे यहाँ पे बेटा बताइए ये यहाँ पे ये कि, हाँ मुझे बताइए यहाँ पे आप ये बेटा कि अगर हमारे पास मान के चलिए कोई यहाँ से आ रहा है, जो जो जिस तरह हम लिगेंड कहते थे एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड्स और दोज लिगेंड्स व्हिच कैन अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन, उसमें कहते थे थ्रू टू डोनर साइट्स। मगर ये भी अटैच हो सकता है, अगर ये C से भी आ सकता है तो इसको ये N से भी आ सकता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह नाइट्रो में N से भी आ सकता है, O से भी आ सकता है, ऐसे ऐसों को फिर कहेंगे एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स। क्या कहेंगे, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं ना इनको, एम्बिडेंटेट। वही इसमें भी इन चीजों में हो रहा है। एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल्स है जो अटैच हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ थ्रू टू डोनर साइट्स। अगर C से आएगा तो ये, और ये भी याद रखना C और C जो बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ज्यादा ही है एज कम्पेयर टू CN बॉन्ड। बात समझिए, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है बेटा कि नहीं है। और इसमें एक पॉइंट और भी याद रखना चाहिए, अगर H ये सॉरी अगर RCl है, अगर RF है, अगर RBr है, RI है, रिएक्टिव यही ज्यादा होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ये जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होगा तो ये रिएक्टिव ज्यादा होगा। अगर इसमें आपको कोई कहेगा रिएक्टिव कौन है, RI इज मोर रिएक्टिव देन RBr देन RCl देन RF, क्योंकि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसको छोड़ेगा नहीं, उसकी वजह से ये स्टेबल होगा, ये हाईली रिएक्टिव होगा क्योंकि ये इसका साइज बड़ा है, बॉन्ड ये बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो ये जल्दी जल्दी टूट जाएगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये चीजें भी याद रखना। अब देखो बेटा, और वो भी कहा मैंने क्या कहते हैं इसको, या इस तरह बेटा है, ये भी पढ़ा है CNO साइनेट, या इस तरह NCO आइसोसाइनेट, ठीक है बेटा कि नहीं है, C से अटैच तो इसको अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। जो दो डोनर, तो ये याद रखिएगा, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स व्हिच कैन अटैच टू एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू टू डोनर साइट्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। मतलब अटैक करेगा किसी को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यूजुअली किसको करेगा, कार्बोकैटायन। अब देखो बेटा यहाँ पे अब आ रही है, ये नवी रिएक्शन थी, तो मैंने कहा कि रिएक्शन ऑफ किसके साथ, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड विद पोटेशियम, शाबाश, पोटेशियम नाइट्राइट। आपको पता है नाइट्रस एसिड इस तरह है बेटा, अगर इसमें प्रोटॉन निकालेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा ONO, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या बनेगा KONO, क्या कहेंगे इसको, पोटेशियम नाइट्राइट। यही मैंने किया खेल, RX लिया, इसको किसके साथ ट्रीट किया, KONO के साथ हीट किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा इसका, ये बनेगा RONO, और क्या निकला KX। तो क्या बन गए, अल्काइल नाइट्राइट्स, अल्काइल नाइट्राइट्स बन गए। तो एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड मैंने लिया बेटा, इसको किसके साथ ट्रीट किया, KONO के साथ, तो क्या बन गया बेटा, CH3ON डबल बॉन्ड O प्लस KCl। इसको क्या कहते हैं बेटा, मिथाइल नाइट्राइट। मिथाइल ये कहाँ से अटैच हो गया बेटा, O साइड से, ठीक है ना। तो क्योंकि ये एम्बिडेंट लिगेंड है, ONO से या N से भी अटैच हो सकता है, ऐसे ये सॉरी ऐसे न्यूक्लियोफाइलों को एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं।
तो इसको क्या कहेंगे, पोटेशियम नाइट्राइट लीजिए या सोडियम नाइट्राइट लीजिए, पोटेशियम नाइट्राइट. सो if methyl chloride if methyl chloride is treated with if methyl chloride is treated with क्या कहते हैं इसको, ये पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, फॉर्मेशन क्या बनेगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल नाइट्राइट टेक्स प्लेस, मिथाइल नाइट्राइट takes place with elimination of with the elimination of KCl. क्या हो गया इसमें भी बेटा, जब इसमें भी आप देख रहे हो ये कि इसमें भी आप देख रहे हो ये कि जब ये वाला बॉन्ड टूट जाता है तो क्या देगा, K पॉजिटिव ONO ग्रुप. वो ONO ग्रुप क्या एक्ट करेगा बेटा, ये क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल. ठीक है बेटा कि नहीं, किसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस किया तो इस तरह यहाँ से बेटा निकल गया, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, ये इसको क्या कहेंगे, मिथाइल नाइट्राइट. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है. तो ये भी याद रखें, हमने पढ़े हैं नाइट्राइट्स, मतलब ये यही वाले ये भी पढ़े हैं, ये O से. दूसरा आपने देखा है इस तरह से आता है नाइट्रो ग्रुप. साइनाइड्स आपने पढ़े हैं जिसमें मिथाइल साइनाइड है, इसको इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं अगर यहाँ पे कार्बन होगा, इथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल को कार्बाइल अमाइंस भी कहते हैं, पढ़े हैं वो आप चेक कीजिए. देखो बेटा ये कौन सी थी, 9वीं 10वीं रिएक्शन. अब रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड विद अब बेटा लेंगे हम AgNO2. ये याद रखिएगा बेटा AgNO2. ठीक है बेटा कि नहीं है, AgNO2. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना. इसका स्ट्रक्चर कैसे है बेटा, NO ये इस तरह है, AgNO2. ठीक है बेटा कि नहीं है. तो ये याद रखिएगा ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड. जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे जब कोवैलेंट बॉन्ड है ये मत, फिर अगर यहाँ पे आएगा बेटा इस तरह, अगर हम देखेंगे, अगर इसको पूरी तरह आप देख लीजिएगा, एक मिनट देखिए, एक मिनट देखिए, अगर हमारे पास बेटा ये हमने क्या बनाया था N, हाँ शाबाश, ये बनाया था KON डबल बॉन्ड O. इसको क्या कहते थे बेटा, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट. वो था बेटा पहला वाला इस तरह, वो था AgNO3, ये है AgNO2, ये इस तरह है बेटा. अब यहाँ पे ये Ag है, ये O है, ये N है, ये डबल बॉन्ड O है, इस तरह है बेटा. अब देखोगे बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसमें दरमियान यहाँ पे पूरा आयनिक था, ये पॉजिटिव नेगेटिव पूरा आयनिक, मतलब ये बाहर निकलेगा पूरी तरह, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज. मगर यहाँ पे प्योरली क्या है, ये लगभग कोवैलेंट बॉन्ड. जब कोवैलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये ONO. ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये इस साइड से ये अटैक करेगा नहीं. मगर नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे बेटा कितने हैं, 2 3, यहाँ पे क्या है बेटा, लोन पेयर. तो ये कहाँ से अटैक कर सकता है, इससे, क्योंकि हमें पता है या तो कंडीशन होनी चाहिए, या तो नेगेटिव होना चाहिए, या तो लोन पेयर होना चाहिए. तो यहाँ से ये कोवैलेंट है बेटा, तो ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से अटैक करेगा. तो क्या बनेगा इसमें बेटा, RX प्लस AgNO2. ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है. तो इसमें क्या बनेगा ये बेटा, ये सीधी सी बात है, जब ये क्या निकलेगा, ये AgX निकलेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा R, ये N से आएगा NO2. क्या बन गया बेटा, नाइट्रो अल्कीन. क्योंकि मैंने कहा ये प्योरली कोवैलेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से कोई काम पड़ने वाला नहीं, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इसकी जगह पे जाएगा. ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही. अब एग्जाम्पल बेटा क्या लेंगे इसमें, CH3Cl प्लस AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट. ठीक है ना बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH3NO2. इसको बेटा क्या क्या पढ़ा है हमने, नाइट्रो अल्केन्स, नाइट्रोमीथेन, और क्या निकलेगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही. तो इन दिस इफ अल्काइल हलाइड्स, शॉर्ट में इफ अल्काइल हलाइड्स
if alkyl halides are treated with if alkyl halides are treated with किसके साथ बेटा ट्रीट करेंगे alkyl halides are treated with किसके साथ AgNO2 के साथ तो formation of nitroalkanes takes place. Formation of nitroalkanes takes place with elimination of silver halides takes place with elimination of तो इसमें formation of nitroalkanes हो गई ठीक है बेटा कि नहीं तो आ गई 10 बेटा अब है ये 11वीं रिएक्शन 11वीं रिएक्शन a reaction of alkyl halides with potassium cyanide alcoholic potassium cyanide तो इसमें भी हम बेटा क्या लेते हैं इसमें क्या बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स फॉर्मेशन ऑफ alkyl cyanides फॉर्मेशन ऑफ alkyl cyanides तो सो इसमें लिखेंगे if alkyl halides are treated with किसके साथ बेटा पोटेशियम साइनाइड के साथ या NaCN के साथ पोटेशियम साइनाइड formation of alkyl cyanides takes place alkyl cyanides or nitriles takes place with the elimination of potassium halide देखो बेटा इसमें भी आपको पता है अगर साइनाइड है Cn अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये बेटा क्या करेगा एक्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा न्यूक्लियोफाइल है ये एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल तो एग्जांपल RX ले ली इसको किसके साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ अल्कोहलिक तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा इसको हीट करेंगे तो क्या आएगा RCN और क्या बनेगा KX एग्जाम्पल अगर लेंगे बेटा यहाँ पे CH3Cl प्लस KCN पोटेशियम साइनाइड तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे ये बनेगा CH3CN प्लस KCl इसको क्या कहेंगे बेटा मिथाइल साइनाइड आप साइनाइड मेरे चेक किए मैंने इंट्रोडक्शन मिथाइल साइनाइड या इसको कहते हैं बेटा इथेन नाइट्राइल तो इसमें भी कौन सा आ गया न्यूक्लियोफाइल उसने किसको रिप्लेस किया उसने रिप्लेस किया बेटा इसको तो यहाँ से क्या निकल गया ये निकल गया ठीक है बेटा कि नहीं है ठीक है ना ये निकल गया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये क्या ये निकल गया ठीक है बेटा यहाँ पे वाटर नहीं ले रहे क्योंकि वो इसके साथ फिर ट्रीटमेंट करेगा OH के साथ ठीक है बेटा कि नहीं है तो ये इसको बढ़ाता है इसकी रेट इसीलिए यहाँ पे हम पानी का इसमें अल्कोहल लेते हैं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा ठीक है कि नहीं है वो आगे चलकर फिर भी थोड़ा बहुत और बताएंगे जब साइनाइड्स आएंगे तो यहाँ पे आ गया तो क्या बनते हैं अल्काइल साइनाइड्स बन गए अब इसकी लास्ट है 12वीं रिएक्शन हालांकि अभी एक और भी है 12वीं रिएक्शन है बेटा रिएक्शन ऑफ अल्काइल halides with सिल्वर साइनाइड यहाँ पे बनते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स फॉर्मेशन ये साथ साथ लिखना वहां पे फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स सो इफ यहाँ पे बेटा क्या करेंगे RX लेंगे यहाँ पे हमने क्या लिया AgCN तो इसमें भी वही माजरा है बेटा जब Ag और C के दरमियान जो होता है ये क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड ये रेडिकल निकलेगा तो हमें क्या आएगा कार्बन कहाँ जाएगा क्योंकि हमें अगर हमारे R पॉजिटिव और X नेगेटिव इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अब इसको कौन दे सकता है ये वाला दे सकता है ठीक है बेटा कि नहीं इसीलिए ये एम्बिडेंट लिगेंड है तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा ये बनेगा RNC और क्या बनेगा बेटा AgX बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही एग्जाम्पल
कोई भी ले लो, CH3Cl ले लो, CH3CH2Cl ले लो, प्लस AgCN, और इसको क्या अल्कोहलिक, और ये क्या है AgCN, पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक। तो ये क्या बनेगा CH3NC, और क्या बनेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3CH2NC, ये क्या बनेगा AgCl। इसको क्या कहेंगे बेटा, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड कहेंगे इसको, या इथाइल कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं इसको, क्या कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये। मैंने कहा वो भूपाल जो मिक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इफ अल्काइल हलाइड्स, if alkyl halides are treated with किसके साथ, अल्काइल हलाइड्स अगर किसके साथ ट्रीट करेंगे, इसके साथ क्या कहते हैं इसको, और ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड AgCN, तो फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स टेक्स प्लेस। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं? तो ये एक कैटेगरी हमारी समाप्त हो गई, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेटा, इसमें हमने देखा ये कि क्या कहते हैं इसको, हमने 12 रिएक्शंस इसमें देखी, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो अब इसमें इसके बाद इसमें आती है मेटिलेशन रिएक्शन, उसमें बेटा फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है वो, RMGX या ARMGX या एलाइलिक भी ले सकते हैं, अल्काइन भी ले सकते हैं, उसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं, साइड चेन में भी बना सकते हैं, या वर्ड्स रिएक्शन उसमें है, वो फेथफुल है फॉर सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए, वहां पे अल्केन्स बनते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसमें अभी फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, वहां पे जिंक डस्ट लेते हैं विद दिस अल्काइल हलाइड। और इसमें अभी बेटा है इसके बाद एलिमिनेशन या टेट्राइथाइल, ये क्या कहते हैं इसको बेटा, अल्काइल हलाइड लेते हैं, मतलब ये टर्शियरी अल्काइल हलाइड, उसको लेड एलॉय के साथ ट्रीट करते हैं, वहां से नॉकिंग रिएजेंट बनता है, टेट्रा अल्काइल लेड बनता है वहां से, ठीक है ना बेटा? तो इसी तरह बेटा उसमें एक और रिएक्शन है विद लिथियम भी है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, वो भी एक रिएक्शन है उसमें, मेटिलेशन रिएक्शंस। उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन में उसमें शेल्स ऑफ रूल पढ़ना है, ठीक है बेटा कि नहीं, कौन स्टेबल है, 2 ब्यूटीन वाला ज्यादा बनता है, डेहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन उसको कहते हैं। अभी इसमें एक और है, फिर उसके बाद बेटा हैलोजिनेशन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है ना? अब ये रिएक्शंस इसमें सारी आ गई। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा इसमें हमने क्या किया, क्या लिया हमने। बेटा हमने x लिया, अब इस तरह ये आ गया, इस तरह 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बेटा 12, ठीक है ना? क्या लिया हमने इसमें, आप ही बोलिएगा। फर्स्ट रिएक्शन जो हमने की, मतलब हमारे पास क्या था, ये बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा, ये इस तरह आपको याद रखना है, यहाँ पे इसको सजाएंगे। देखो बेटा इसमें इसमें हमें कितनी बन गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बेटा कि नहीं? तो इसमें हम ये क्या लिया बेटा, RX। क्या करना है इसमें, ये इसमें बेटा इसको भी सजाएंगे। ये इसमें निकालना है, ये क्या एक्ट करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप। तो इसमें भी बेटा आप मुझे बताइए क्या क्या आपने किया। पहले में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, तो वहां से आपने अल्कोहल्स बनाए, ठीक है बेटा कि नहीं? आपने फिर उसके बाद, हालांकि मुझे वो नहीं जाना है, AgOH आपने लिया, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपने सोडियम अल्कासाइड लिया, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे मैं इस तरह ही बनाऊंगा RONA, यहाँ पे ये लिया, तो क्या बन गया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बन गया ईथर्स बनाए आपने, ठीक है ना? इस तरह आपको याद रखना है, ईथर्स बनाए आपने। आपने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया,
तो वहां से आपने क्या बनाया बेटा, थायोल्स बनाए आपने, RSH, ठीक है ना। आपने फिर यहाँ से बेटा सोडियम सल्फाइड लिया, तो वहां से आपने क्या बनाए, थायोईथर्स बनाए, यहाँ पे थायोल बनाया, ठीक है बेटा कि नहीं। आपने बेटा CH3, यानी हम यहाँ पे अब ऐसे ही रखेंगे, RCOONA लिया या AG लिया, AG, तो वहां से क्या बनाया आपने, एस्टर्स बनाए, RCOOR, ठीक है बेटा कि नहीं। आपने यहाँ से बेटा ये क्या कहते हैं इसको हम, ये Na पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड C, H सोडियम एस्टेलाइट दिया, ठीक है बेटा कि नहीं। वहां से आपने क्या बनाए, हायर अल्काइंस बनाए, वो बन गया इस तरह RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। आपने वहां से अमोनिया लिया, अमोनिया, तो इसमें आपका ये बन गया, RNH2 भी बन गया, इसमें R2NH भी बन गया, इसमें बेटा R3N भी बन गया, इसमें बेटा R4N पॉजिटिव हैलाइड भी बन गया, जब एक्सेस क्वांटिटी में वो लिया, वो आपको पता है बेटा, ठीक है ना बेटा। आपने पोटेशियम नाइट्राइट लिया, KONO लिया, तो वहां पे आपने क्या बनाया, RONO, जो एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया। यहाँ पर ये आपने क्या लिया बेटा, AgONO, क्योंकि वो प्योरली कोवलेंट है, वहां रेडिकल बनेगा, तो वहां पे बेटा क्या बन गया हमारा, RNO2 बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। आपका बेटा हमने ले लिया, क्या कहते हैं इसको, ये क्या कहते हैं, KCN लिया अल्कोहलिक, तो वहां से आपने क्या बनाया बेटा, RCN बनाया। आपने यही AgCN लिया अल्कोहलिक, तो वहां से आपने क्या बनाया बेटा, RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड्स बन गए, इसमें ये बन गया, इसमें बेटा ये बन गया, इसमें ये बन गया बेटा, इसमें ये बन गया बेटा, इसमें ये सारे बन गए, ठीक है बेटा कि नहीं। इसमें ये बन गया, इसमें ये बन गया, इसमें बेटा ये बन गया, इसमें ये बन गया, इसमें बेटा ये बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हाँ, अभी अब ईथर भी लिया था आपने, उसके लिए आपने क्या लिया, सोडियम अल्कासाइड, CONH3, ये आ गया पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे हम रखेंगे R, यहाँ पे R रखेंगे, हाँ, यहाँ पे बेटा R रखेंगे, ये क्या बन गया, ROR, ये बन गया बेटा ईथर। ये क्या बन गए, इसमें बन गए बेटा ईथर, ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड्स, ये क्या बन गए, साइनाइड्स, ये क्या बन गए, नाइट्रो अल्केन्स। इस तरह आपको चार्ट बनाना है, ये क्या बन गए, अल्काइल नाइट्राइट्स, ये क्या बन गए, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री, ये 4 डिग्री यानी कवाट में। इसमें क्या बन गया बेटा, एस्टर्स, इसमें क्या बन गया, हायर अल्काइंस, हायर अल्काइंस बन गए। इसमें क्या बन गया, थायोईथर यानी डाई मिथाइल सल्फाइड थायोईथर, डाई अल्काइल थायोईथर। इसमें क्या बन गया बेटा, थायोल्स बन गए। इसमें क्या बन गया बेटा, ये हमने लिया था RON, इसमें अल्कोहल्स बन गए, इसमें बेटा क्या बन गए, अल्कोहल्स बन गए, ठीक है बेटा कि नहीं है। ईथर हमने किया था। अब ये NaH, H2S, RCONA और NH3, पोटेशियम नाइट्राइट, KCN, AgCN, तो कौन कौन सा इसमें हमें बेटा आ गया, एक न्यूक्लियोफाइल आ गया OH नेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल आ गया बेटा, ये क्या कहते हैं इसको, ONA, यानी यहाँ पे ये सॉरी, ये बन गया OR नेगेटिव, ये बन गया बेटा इसमें। यहाँ पे बेटा इसमें क्या बन गया हमें, अगर ये वाला हम देखेंगे उसमें भी बन गया H2 नेगेटिव, इसमें भी क्या आ गया बेटा, ये जो हमारा ये था इसमें भी बन गया RCO नेगेटिव, ठीक है ना। ये सब देख रहे हैं, इसमें भी बन गया ये वाला न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसमें भी बन गया ये अमाइंस, आपको पता है बेटा। अब इसमें भी आपको पता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब जो ये बेटा है, जो हमने अब ये प्रिपेयर किए सारे मतलब केमिकल रिएक्शंस की, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।
अगला लेक्चर है। और ये भी मैंने आपको कहा है कि मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ज़रूरी इसी केमिकल रिएक्शन में ही पढ़ाऊंगा। वो जो फैक्टर्स है, प्रोटिक अप्रोटिक, नेचर ऑफ सबस्टेंस, नेचर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो उससे क्या बात, स्टीरिक हिंड्रेंसेस, वो मैं पूरा समझाऊंगा। चलिए शुक्रिया।